afternoon, everybody. I'm Sayukta, your host for today's live from All About Skin Wellbeing team. And I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some point of time in our lives. Urticaria is characterized by round rash on the skin that itch a lot. It may be due to certain chemicals and certain food items, allergy to certain medication, insect stings, sunlight, and sometimes the cause is unknown. As per study published in Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years. Incidences are higher in older age group. Urticaria is classified as acute and chronic, but the most important part is not to ignore it, and doing self-medication can actually worsen these symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early remission. In today's digital world, it's always a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria and its type, how we can prevent it, the kind of test required for its diagnosis, the right treatment and management approach for an early relief. So today we have with us Dr. K Pallavi, who is an MD, dermatologist, and currently working as an assistant professor, Department of Skin and VD in Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna. A very warm welcome to you, Dr. K Pallavi. Hello. So, Doctor, it's a pleasure to have you with us. And today, as we are going to discuss about a very important and a very common thing, which is the management of urticarial rashes. So, first of all, we would like to understand, Doctor, what is urticaria? Actually, in urticaria, patient have skin rash that is evanescent in nature, means it persists for some time, maybe half an hour, maybe 1 hour, or sometimes 24 hours. Okay? And it will go off and on. And sometimes its patient may have for a few days, or it may last longer. Sometimes patient complain of difficulty in breathing also, with severe itching, which they can't tolerate without taking any medicine. Okay. तो ये हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अर्टिकेरिया की, and at the same time we would also like to know what causes urticaria. क्या-क्या reasons होते हैं urticaria होने के पीछे? There are different types of urticaria. Let's first we divide it in acute and chronic. Acute and chronic we divide it on the basis of duration of the lesions, the duration of the disease actually. Within the 6 weeks, it is acute. More than 6 weeks, it is the chronic. The causes of acute urticaria is it may be drug, it may be infection, or it may be food. Maybe patient having anything allergic to food, or maybe patient have any unknown drug he is taking for her means headache or stomach upset, for without taking any doctor consultation, is taking any medicine from the nearby store or without consulting doctor. That drug may also cause any type of skin allergy. And food may all patients are not allergic to all the foods. Okay, like whatever the patient may have in mind. Okay, every patient is allergic to brinjal, bagan. They are saying, okay, we all are no. People are saying don't eat bagan. Okay, like fish, they don't. Egg. But I'm saying not all patients are allergic to everything. These are the common allergens in foods: peanuts, fish, egg. But I am saying not all patients are allergic to everything. So you have to, or anybody have to identify the cause, identify whether it is an infection, whether it's drug, whether it is food. Right. So, n number of things could be responsible for urticaria, and diagnosing or finding out the trigger factor is important. We would also like to understand, Doctor, अभी आपने बताया कि urticaria क्या होता है initially, लेकिन as a layman, we would like to understand how does it look like? क्योंकि स्किन एलर्जीज जितनी भी होती है उसमें इचिंग होता है, रैश भी होता है, कई बार ये नहीं पता चलता कि ये अर्टिकेरिया है या कुछ और, तो कैसा अर्टिकेरिया दिखता है एग्जैक्ट?
अर्टिकेरिया का जो रैश होगा वो रेड कलर का होगा, रेज्ड होगा. इन लोकल टर्म पीपल आर यूजिंग चकत्ता, ठीक है, बट इन एजुकेटेड दे आर यूजिंग ओके रेड पैचेस, एलिवेटेड पैचेस, रेज जो स्किन से उठा हुआ होगा, ठीक है, फ्लैट नहीं होगा, उठा हुआ है, रेड है और सीवियर ईचिंग हो रहा है, और हो सकता है वो विद मेडिसिन और विदाउट मेडिसिन इट डिसअपियर्स. Sometimes it disappears after 1 hour, without taking medicine also. Okay. Sometimes you take medicine, it get disappear again next day or after 24 hours it again starts. Right. So ऐसा दिखता है, तो in case you see these science viewers, you need to go and consult a qualified doctor. We'll also talk about how important and why it's so important to consult a qualified dermat rather than going for quacks, etc. We'll talk about that as well. लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर, क्योंकि इनिशियली आपने कहा था कि अर्टिकेरिया बहुत तरह का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक में तो हम उससे बैफिकेट कर ही सकते हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पर भी तकलीफ होती है, और आपने कहा कई बार स्वेलिंग भी होती है ऑर्गन्स में, राइट? सो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस इट कैन बिकम, कितना खतरनाक हो सकता है और क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है? Yeah, it is life threatening. Sometimes swelling means sometimes people face swelling of the lips, swelling of the private part genitalia, swelling of the eyeballs. Sometimes people may have difficulty in breathing also. In that condition, it may be a life threatening of. Okay. So before consult a doctor. Whether means that swelling of the lip or private part, we call it angioedema. Urticaria with angioedema means edema in the skin layer. So for that, it is a life-threatening condition. Sometimes because people have difficulty in breathing, so they may have anything seriously. Right. That makes it even more important to go and consult a doctor in case you have urticaria. तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. अगर ये साइंस है तो प्लीज अपने जो भी आसपास अच्छे क्वालिफाइड डर्मैट हैं उनसे जरूर संपर्क करें. Now, doctor, you know what happens, because you said it's a kind of allergy. Now, we all are so aware, chemist shops are so easily accessible, and over-the-counter medication is easily available in our society, in our country. Now, the thing is that we'll go to a chemist shop and say कि हमें कोई एंटी एलर्जेंट दे दो. कई एंटी एलर्जेंट्स के मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन घर घर में नाम पता होते हैं लोगों को. तो ऐसे में ओवर द काउंटर एंटी एलर्जेंट ले लिया, खा लिया, 1-2 दिन में आराम हो गया, नहीं गए डॉक्टर के पास. फिर जब तकलीफ हुई, यही सिमिलर साइंस दिखे, फिर एंटी एलर्जेंट ले लिया. इस प्रैक्टिस को किस तरह से आप देखते हैं? इस प्रैक्टिस को मैं नॉट ओनली इन केस ऑफ अर्टिकेरिया but in any department or any other specialty, I always prefer in the initial stage you should visit your doctor or consult so that it not become a chronic. Later on, like in cancer, in initial stage, you can say there is a more chances of operation or with medicine we can get it. But in when it goes metastasis to another organ, means that part of cancer it transfer to another organ involved, then you will later stage you will visit your doctor and then you started crying and or that. Every field, I said first maybe required only one visit, it can cure you for your life. You get a good suggestion instead of taking any suggestion from a layman or a chemist shop, anything, anywhere for older. Because मैं वो कहूँगी कि बढ़ाना क्यों है किसी चीज को, आप इनिशियली क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हैं. और there are doctors available in government hospitals everywhere, private clinic. ऐसा नहीं है कि अभी डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं मिलते हैं और हॉस्पिटल्स नहीं हैं या गवर्नमेंट सेटअप नहीं है. प्राइवेट से जिनकी जो कैपेबिलिटी है वो उस हिसाब से विजिट कर सकते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि सारे मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव आते हैं और आप एफोर्ड नहीं कर सकते. नहीं, गवर्नमेंट का सप्लाई है, प्राइवेट में भी है, लेकिन आप एफर्ट कर सकते हैं और इनिशियली आपका एक्सपेंसेस कम होगा. एक ही विजिट में हो सकता है आप क्योर हो जाए, हम आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन भी ना कराना पड़े, बाद में लेटर ऑन होके सीवियर होके और आप उसको फिर इन्वेस्टिगेशन में भी पैसा वेस्ट कर रहे हो, ड्रग में भी हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम विजिट भी कर रहे हो, तो फिर हर चीज का तो टाइम भी इतना वेस्ट कर रहे हो. तो इसलिए बेटर है कि किसी भी डिपार्टमेंट में आपको है कुछ भी प्रॉब्लम तो एक विजिट और सजेशन लेने में तो कोई भी
ऐसा नहीं है लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास टाइम बहुत है। जितना टाइम हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन में या फ्रेंड्स या फैमिली से सजेशन लेने में, उनके प्रेस्क्रिप्शन लेके केमिस्ट शॉप में जाने में, ऑनलाइन सजेशन, करने में, ऑनलाइन कुछ भी सर्च करके सेल्फ मेडिकेशन करने में वेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी हम रील्स और वीडियोस देखते रहते हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं। उससे भी बहुत कम टाइम में अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो ये ढूंढिए कि आपके आसपास कौन क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, जिनके अच्छे रिव्यूज हैं, उनके पास जाइए तो आपका you know save on your energy, time, money, and most importantly your health. इनफैक्ट यू कैन एजुकेट अदर्स आल्सो, क्योंकि आई वेस्टेड वंस और आई गेट क्योर्ड, आई वेस्टेड मल्टीपल टाइम्स एंड आई एम स्टिल नॉट। एग्जैक्टली तो कई बार हम चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट करने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं कि जो ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो सकता था शायद एक ही विजिट में हो जाता, जैसा कि डॉक्टर कह रही हैं, उसमें बहुत लंबा वक्त लग सकता है। तो प्लीज डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, डोंट एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ, गो एंड take advice from a qualified dermatologist. Now, doctor, आपने बताया कि acute and chronic दो bifurcations होते हैं, दो कैटेगरीज होती है। acute is like 6 weeks में अगर वो ठीक हो जा रहा है और उससे बाद अगर और ज्यादा टाइम ले रहा है then it's chronic. Chronic urticaria के जो पेशेंट्स होते हैं उनका एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन होता है, will it ever go away permanently? क्या हमें से पूरी तरीके से निजात और राहत मिलेगी? क्या इस पे आप कहती हैं नॉर्मली? Chronic urticaria का causes different है. It's sometimes pressure urticaria or solar urticaria. There is temperature, sudden temperature variation in the body. Patient is going some gym work or heavy work and they are having sweating or sudden body temperature. Sometimes patient having pressure urticaria कि बहुत tight मैंने belt पहना और मैंने tight belt पहना और वहां पे मुझे rash हो रहा है. Solar urticaria. तो ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि some patient may have to take medicine for lifelong, not all. Some may get cured for few months or after treating 1 year, and some patients they have to take medicine for lifelong. Right. तो कई ऐसे मेडिकल कंडीशंस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इसमें भी हमें थ्रू आउट दवाई लेनी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। तो अगर अर्टिकेरिया के लिए भी लेना पड़ रहा है तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं है, बस जरूरी ये है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर, व्हाट आर द potential complications of urticaria if left untreated? अगर डॉक्टर्स को दिखाए नहीं, ट्रीटमेंट ले ही नहीं, तो क्या हो सकता है? डॉक्टर को दिखाया नहीं, ले नहीं, आप अगर ये मे बी इन्फेक्शन का अगर कॉज है, ठीक है, तो इन्फेक्शन में भी लीवर का भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, ठीक है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूटीआई भी हो सकता है। तो एनी टाइप ऑफ सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट इन्फेक्शन में कॉज अर्टिकेरिया, ठीक है, और आप उसको फिर ट्रीट नहीं करोगे तो वहां आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है। Sometimes patient हमारे पास आते हैं and they say I am having this. So we ask them systemic problem. And do you have any systemic problem related like this urine infection or thyroid or blood, hepatitis, anything, or pain abdomen, fever related to that. So in the simultaneously they got treated from the both sides. If it let untreated, there in systemic involvement, the infection they would get spread more and more complication patient may have. बिल्कुल, और इतना स्ट्रेस भी इन्वॉल्व होता है बिकॉज अ पर्सन इज कंटिन्यूअसली इचिंग, बहुत ज्यादा इचिंग होती है। मेनी टाइम्स पीपल हेजिटेट इन गोइंग आउट, दे विल नॉट सोशलाइज, पब्लिक प्लेसेस पे जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में वो अपने आप को देखते हैं। तो ऐसे में स्ट्रेस तो डेफिनेटली एसोसिएटेड है ही। तो क्या उस स्ट्रेस की वजह से अर्टिकेरिया एग्रीवेट हो सकता है डॉक्टर? बिल्कुल हो सकता है। आप ऑफिस में हो, आपको रैश आ गया, आप इचिंग कर रहे हो, तो आपका स्ट्रेस तो वहां पर, आप डिस्टर्ब भी तो हो रहे हो और इचिंग से परेशान भी हो रहे हो, तो आप कैसे फोकस करोगे? कोई स्टूडेंट है स्कूल में हो रहा है तो वो कैसे फोकस करेगा? ठीक है, नाइट में आपको हो रहा है तो आपका स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं रहोगे तो उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। बिल्कुल, तो स्ट्रेस की वजह से अर्टिकेरिया जो है एग्रीवेट हो सकता है। अर्टिकेरिया एग्रीवेट होगा तो ऑफ कोर्स उससे और ज्यादा
स्ट्रेस होगा तो एक विशियस साइकिल है, और साइकिल को अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम एक एक्सपर्ट के पास जाए, एक क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाए, ये बहुत जरूरी है। कई लोग ये कंप्लेन करते हैं जिन्हें अर्टिकेरिया होता है कि रात में जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा उभर के, या जो इचिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। सो इज देयर कोरिलेशन? नहीं, अर्टिकेरिया पेशेंट को ऐसा नहीं है कि एवरी पेशेंट हैव नाइट एग्रीवेशन. Sometimes some diseases itching aggravates at night. That is all because at night they are free. In daytime they are busy in their works and they don't focus on that, and their minds are focusing on their specific work. But at night they are free. They have watching TV to say they relax. Okay, I am having itching. I am having the lip swelling, or I am it gets disturbed me at sleeping. Like that, it's not in daytime also, and there is no time prediction. Urticaria. Anytime you can. Right. And moreover, because we are preoccupied during the day, कुछ ना कुछ काम में हम busy रहते हैं, तो distract उतने नहीं होते. रात में we are all by ourselves, ज़्यादा time होता है, relaxed होते हैं, तो ऐसे में वो ज़्यादा समझ में आता है. Again, patients also complain of getting very tired or fatigue feel करते हैं. उसका क्या reason है, doctor? The tired or fatigue urticaria se nahi, maybe they are taking some medicines that is sedative, or they take there are two types of medicines, sedative and non-sedative. We can classify anti-H1 and H1-2. So maybe sometimes at night we prefer to give sedative medicine so they can sleep also very preferably, and morning they feel when they wake up they feel very relaxed. So sometimes that sedation may prolong the morning, the effect of the medicine, or sometimes patient took at late night. So the effect may get prolonged. So that is because of that, patient may have lethargy or sleeping or uneasiness, not comfortable in the morning or daytime. Or in the daytime also they feel sleepy. Okay. तो जब एक पेशेंट आपके पास आते हैं डॉक्टर, तो कैसे आप डायग्नोस करते हैं? जस्ट बाय क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, और यू आल्सो एडवाइज सम टेस्ट और समथिंग टू डायग्नोस? By clinically, and by we go for the investigation also, blood investigation. If required, then ultrasound also we can go for that. Depending on the type, we like urticaria, we divide acute and chronic. What is the maybe the cause of it? According to that, we divide advice this investigation. Okay. कई बार ये होता है अगेन, बिकॉज इतनी अवेयरनेस है, ऑनलाइन इतना इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, तो हमें पता है कि अच्छा ये एलर्जी से हो रहा है. हमें ये भी पता है कि फूड एलर्जी से कई बार फूड एलर्जीज आर क्वाइट कॉमन, जैसा कि आपने बताया. लेकिन कई बार हम उसे एक अम्ब्रेला ब्रैकेट बना देते हैं. हमको लगता है अच्छा किसी और को बैंगन खाने से या सी फूड से हुआ है तो मैं भी खाना बंद कर दूंगी, जो कि नहीं करना चाहिए. बट देन वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ वेरियस टेस्ट, जिसमें ये पता चलता है कि आप कौन कौन से फूड आइटम से आपको एलर्जी. और कई बार तो लोग एक ट्रेंड सा हो गया है, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली लैब में जाते हैं, दे गेट द टेस्ट डन, और टेस्ट रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाते हैं कि लुक, आई एम एलर्जिक टू से 30 और 50 फूड आइटम्स. नाउ 30 या 50 फूड आइटम्स को आपकी थाली से ओमिट करना इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. What's your take on these tests, and how important it is to go by what the doctor is saying, and not, because they are also not very, inexpensive or friendly, pocket friendly tests. They are expensive at the same time. तो क्या आप कहना चाहेंगे? Yeah, I not always prescribe this test, allergic test to all the patients, because it's very difficult to eliminate a single food from your plate. So it's better by clinically, okay, you are not taking this brinjal bangan from last 7 days, take it today. If you are having, then eliminate it. You are not having chicken from last 10 days, today you are having, so take it 2 days. Then in like that also you can eliminate your food item. Okay, since last 1 month I'm not having egg, and I took it suddenly today and I am having this rash. This way also you can eliminate your food items.
राइट। डॉक्टर, क्या कोई डायरी भी मेंटेन करना चाहिए? क्योंकि कई बार हमें ट्रेंड नहीं पता चलता, हो सकता है हमें 2-3 हफ्ते से ऐसा हो रहा हो, लेकिन जब तक हम डॉक्टर के पास जाए हम उनको बता ही नहीं पाते कि पिछले 2-3 हफ्ते में क्या ट्रेंड था, क्या हमने खाया, क्या ऐसा किया जिसने ट्रिगर किया होगा। हाँ, ये आप माइंड में सोच सकते हैं कि मैं इन्वायरमेंट में भी चेंजेस होंगे, ठीक है। आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप होटल्स में स्टे कर रहे हैं, आप ट्रेन में स्टे कर रहे हैं, तो आप बेडशीट वगैरह डिफरेंट, ये चेंजेस हो रहा है। या आप पार्लर सैलून जा रहे हैं, हो सकता है आपने हेयर डाई करवाया हो, उसमें कुछ एलर्जन हुआ है, कुछ भी पार्लर कॉस्मेटिक्स यूज किया हो। और हाँ, तो इन सब चीजों से भी आप ओके, मैंने नहीं किया था और आज मैंने किया तो मुझे ऐसा हो गया। और कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाला, फूड, टैन फूड, ये सब आप यूज कर सकते, यूज करने पे भी पेशेंट को पता चल जाता है कि ओके, मैं पहले यूज नहीं कर रहे थे और आज मैंने यूज किया तो मुझे ऐसा हो गया। तो ये पेशेंट को रिकॉल करके थोड़ा सा हिस्ट्री देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वो सोच सकते हैं कि अच्छा, मैंने नहीं किया था, लेकिन सडनली मैंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा रैश आने लग गए। ओके। In that way you eliminate your daily routine, or you can change, you can modify, सोच सकते हैं। You can अभी आपने कहा कि choose। जो कैन फूड्स होते हैं या जिनमें प्रिजर्वेटिव होता है, उनसे भी ट्रिगर हो सकता है। सो आर देयर एनी डूज एंड डोंट्स फॉर द पेशेंट्स ऑफ अर्टिकेरिया, स्पेशली डाइट से रिलेटेड? डाइट से रिलेटेड फिर हम लोग तो कैन फूड अवॉइड करेंगे, प्रिजर्वेटिव डाला हुआ, कलर्ड फूड, कई बार समटाइम्स कलर्ड स्वीट्स वगैरह या बिरयानी में कलर्स, तो वो कलर्ड भी कई लोगों को अर्टिकेरिया एलर्जी होते हैं, तो उन सब चीजों को अवॉइड करें। ओके। ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंटी हिस्टामिन, जो हम लोग बोलते हैं एलर्जी के लेमन बोलते हैं कि एलर्जी का दवा दे देना शॉप में, ठीक है। तो उसमें दवा सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और वो डिपेंड करता है एज ग्रुप पे। हाँ, मेल फीमेल, वर्किंग आवर क्या है, अगर हम उसको मॉर्निंग में कुछ सेडेटिव दे दिए तो वो ऑफिस में सोता रहेगा। प्रेग्नेंट लेडी है, नहीं है, बच्चों के डोजिंग डिपेंड करते हैं, एल्डरली है उन पे डिपेंड करता है। तो मेडिसिन भी है, बहुत सारे मेडिसिन है, और वो डिपेंड करेगा पूरा हिस्ट्री लेने पे कि हमको, मेरे को इसको किस तरह का मेडिसिन प्रोवाइड करना है, इसका वर्किंग आवर क्या है, इसका ड्यूटी क्या है, किस तरह के प्रोफेशन में है, बच्चे हैं, स्कूल जाना है, छोटा बच्चा है, उसके पे डोज डिपेंड करेगा कि ऐसा ना मैं उसे सेडेटिव दे दूं वो सोता रहे, क्लास में सो जाए। या प्रेग्नेंट है, हाँ, उसके बेबी को सोच के हमें भी ड्रग देना होगा। एल्डरली है, उनका भी देख के सोच के कि उनके साथ वो और भी कई तरह के मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस पर ड्रग इंटरेक्शन ना हो जाए कुछ मेडिसिन ट्राई करने से, तो ये सब सोच के। राइट। छोटे बच्चों में भी होता है डॉक्टर अर्टिकेरिया, और कितना कॉमन है और क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन है। अर्टिकेरिया का कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है कि इस एज में ज्यादा कॉमन है, बच्चों में भी देखा गया है। कई बार बच्चों में कॉमन होता है, जैसे हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन होता है उनसे, जैसे हम लोग लेमन में कहते हैं पेट में कीड़ा, क्योंकि वो लोग हैंड वॉश नहीं करते हैं, टॉय ले लिए, क्ले ले लिए, तो उन सब बच्चों एज ग्रुप में भी अर्टिकेरिया काफी कॉमन देखा गया है। तो हैंड वॉश कर, उन लोग प्रैक्टिस होना चाहिए, हैंड वॉश कराते रहना चाहिए पेरेंट्स को, और कुछ भी उठा के मुंह में नहीं ले ले, ठीक है। राइट। कोविड के टाइम पे हमने देखा कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए उनमें से कई लोगों ने ये शिकायत की कि उनको हाइव्स भी हुए, खासकर चेहरे पर। तो क्या कोई कोरिलेशन है, या जैसा कि आपने इनिशियली कहा था कि अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, तो उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है? हाँ, नहीं, अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक कोविड में अर्टिकेरिया से नहीं आया, लेकिन कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन में अर्टिकेरिया हो सकता है। तो जैसे कोविड वैक्सीन लेने से, कोई वैक्सीन लेने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने से भी अर्टिकेरियल रिएक्शंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बहुत लंबे नहीं चलते हैं। कोविड में हाँ, तो लंबे नहीं चलते हैं, और सीवियरिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। डॉक्टर, इज अर्टिकेरिया कंटेजियस? नो। ओके। तो वो बिल्कुल भी किसी से किसी को नहीं फैलता है।
राइट, तो एक ये मिथ बर्स्ट होता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर स्किन से रिलेटेड कुछ भी इन्फेक्शन है, एलर्जी है, तो वो किसी और को छूने से भी फैल जाएगा। तो अर्टिकेरिया के केस में एटलीस्ट ऐसा नहीं, बिल्कुल फैक्ट भी नहीं। में ऐसे बहुत कम डिजीजेज में स्किन में भी जो फैमिली में या कम्युनिटी में एक दूसरे को कम इन्फेक्शन होंगे। एक एक ये सोच ही बना हुआ है, स्किन है तो उसको टच नहीं करना, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज को भी, लेप्रोसी को भी आप टच कर सकते हैं विद सर्टेन प्रिकॉशन। एचआईवी पेशेंट को भी आप टच कर सकते हैं विद सर्टेन प्रिकॉशन, आप उसके साथ कर सकते हैं। सबका मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन और मोड ऑफ इन्फेक्शन अलग है, तो ऐसा नहीं है, हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। राइट। अब कई बार ऐसा होता है डॉक्टर, स्पेशली क्रॉनिक अर्टिकेरिया के केस में, जो लोग क्रॉनिक अर्टिकेरिया से सफर कर रहे हैं, मान लीजिए वो डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उनके पास प्रिस्क्रिप्शन है, उन्होंने 3 महीने की दवाई बोली और हमने 1.5 महीना लिया और हमको रिलीफ हो गया। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक टेंडेंसी है कि हम उसको उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना छोड़ देते हैं। हमको लगता है अब तो आराम हो गया, हो गया। फिर अगर 1 डेढ़ महीने बाद फिर हमें वो सिम्टम्स साइंस दिखते हैं, तो हमको लगता है हमारे पास तो प्रिस्क्रिप्शन है, अब हमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। विल गो ओवर द काउंटर, गेट दोस मेडिसिन्स एंड स्टार्ट सेल्फ मेडिकेशन अगेन। फिर यही एक साइकिल चलता रहता है, और फिर हमें लगता है कि जब हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि अरे ये ठीक ही नहीं हो रहा है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि नहीं, वो तो हमने अपने आप से बंद कर दिया था। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे। क्या बिल्कुल उनसे आप कहते हो, कैसे उन्हें काउंसिल करते हो? नहीं, मैं काउंसिल करती हूँ या कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट को काउंसिल करते हैं कि ड्यूरे अर्टिकेरिया में एक तो कोई भी ड्यूरेशन, पेशेंट बोलता है कितने दिन का लेना है, आप उनको बोल दीजिए नहीं, अर्टिकेरिया में कोई भी ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। एंटीबायोटिक जैसा कि 7 डेज लेना है या 10 डेज लेना है, 12 डेज लेना है, नहीं। हम उसको देखते हैं कि किस डोजिंग पे इसको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, पेशेंट सेटिस्फाई है। हो सकता है सिंगल ड्रग देने पे वंस इन अ डे उसको नहीं इम्प्रूवमेंट मिल रहा, तो हम उसका डोज या मॉलिक्यूल चेंज करके उसको एडजस्ट करेंगे। फिर जब वो एडजस्ट होगा, फिर हम उसको थोड़ा लंबे टाइम तक रखते हैं और फिर हम उसको धीरे धीरे ही फिर उसको टैप करते हैं। डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें। अर्टिकेरिया काफी कॉमन है, बहुत लोगों को होता है। अगर आपके आसपास भी किसी को अर्टिकेरिया है, आपको वो अर्टिकेरियल रैशेस दिख रहे हैं जो लाल हैं, जो थोड़े से उभरे हुए से हैं, जिनमें बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो प्लीज उसे इग्नोर नहीं कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, ये बहुत जरूरी है। ओवर द काउंटर मेडिकेशन हुआ या सेल्फ मेडिकेशन हुआ या होम रेमेडीज, या हमारे दोस्त या रिश्तेदार जिनको कभी अर्टिकेरिया हुआ था, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, तो उनका प्रिस्क्रिप्शन प्लीज फॉलो मत कीजिए। अगेन, अर्टिकेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकता है, आने वाले समय में बहुत सीरियस हो सकता है, इसलिए भी वो बहुत जरूरी है कि हम एक डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर की सलाह लें। बहुत आसानी से रिलीफ इससे आपको मिल जाएगा। कई लोग सिर्फ दे कीप सफरिंग इन साइलेंस, वो बताते ही नहीं है कि उनकी क्या दिक्कत है। उनको लगता है कि ये तो एक स्किन एलर्जी है, इन्फेक्शन है, और इसके बारे में वो बात ही नहीं करते। उनको लगता है इसका कोई इलाज ही नहीं है। बहुत आसान इलाज है और बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिल जाएगा। आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि आप एक क्वालिफाइड, एक अच्छे डॉक्टर को, जो आपके पास हैं, आसपास रहते हैं, उनको जरूर दिखाएं। हमारे साथ आज डॉक्टर के पल्लवी जुड़ी थी और बहुत अच्छी बात उन्होंने अर्टिकेरिया को लेके की। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा। उन्होंने हमें बताया कि अर्टिकेरिया क्या है, क्या करना चाहिए, और क्यों बहुत जरूरी है कि अर्टिकेरिया के केस में हम एक डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर active participation, for joining our session. And to get latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our FB page, all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Insta. Thank you. Have a good day ahead. Goodbye.